अभी नाउ सिंस यू आर इनटू रनिंग एंड यू रन मैराथन्स एंड एवरीथिंग, क्या ऐसी 3 चीजें हैं जो रनिंग के बारे में नहीं पता? वर्स्ट सरफेस, जो सबसे घटिया सरफेस होता है, दैट इज पेव्ड ब्लॉक्स. रनर्स हाई इज अ स्टेट व्हेन समवन अचीव की उसमें ना आपका बॉडी विल फील लाइक यू आर ग्लाइडिंग थ्रू द रोड्स. Is there a special diet for say running a marathon or something? Yeah, so it depends what kind of running you are doing. So let's say मेरे हिसाब से अगर आप 1.5 घंटा दौड़ रहे हैं या फिर मान लीजिए अगर आप 12 किलोमीटर तक दौड़ रहे हैं तो आपको कुछ भी एडिशनल प्री वर्कआउट लेने का जरूरत नहीं है, कुछ भी खाने का जरूरत नहीं है. ठीक है. ड्यूरिंग रन आई वुड से अगेन व्हाट माय थिंग इज कि आई कंज्यूम इलेक्ट्रोलाइट एवरी 3.5 किलोमीटर्स. इफ यू वांट टू run, the best time to start running was yesterday, and the second best time to start running is just now. So there's no perfect time for running. You can run any day, any time, but you have to find your own community, own tribe. So the thing about running is about consistency. So there's again a quote saying ki hard work will always beat talent. Okay. So in general, people don't know this, that just the act of starting on the line, getting to the start line is itself winning. So, इस बार के जो हमारे गेस्ट है वो एक मैराथन रनर है. Along with his corporate job, वो मैराथन रनिंग करते हैं, फिट रहते हैं. एंड हमने उनको बुलाया है क्योंकि क्रिकेट और फुटबॉल ये तो बहुत कॉमन स्पोर्ट है, बट मैराथन एज अ स्पोर्ट अगर आपको लेना है, अगर आपको करना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, कैसा होता है मैराथन का वर्ल्ड, एंड आपको मैराथन रनिंग या रनिंग इन जनरल करके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो आपको इस एपिसोड में जानने मिलेगा. सो हमारे गेस्ट का नाम है शिवम, एंड आई होप यू गाइज रियली एंजॉय दिस इंसाइटफुल पॉडकास्ट वेर यू अंडरस्टैंड कि रनिंग भी एक बहुत बढ़िया स्पोर्ट है अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको compete करना है. एंड या आई होप यू गाइज एंजॉय द पॉडकास्ट, एंड सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा. सो आई डू थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट. So, Shivam, hello. Tell us about your journey. कैसे एक normal corporate job से you got into running, you got into marathons. कैसा journey रहा है अभी तक? First, I'll tell something about myself. तो मेरा नाम शिवम राय है. So I have been born and brought up at Amarnath only. I am native to Banaras. And after 2018, when I passed out my BTech from NIT Rourkela, I got into Tata Steel as a corporate employee. Then one fine day, what happens? Tata Steel, in its annual journey, they organize a running event called Tata Steel Jamshedpur Runathon. So that has a maximum distance of 10 kilometers. I didn't knew this. So that was around in the month of September 2018. And one of my friends said कि तू तो कुछ ना मोटा हो गया, भागता नहीं है. Let's go for a run. Then I went with him for a run for like 3-4 kilometers, not more than that. And he went very ahead of me. I was slowly jogging and everything. Later in the day, in the evening, he took me to the mall, and then he purchased my first Reebok shoes, which I still remember. I have them still after 6 to 7 years. I don't use them, but I have them as a memory. And on the next day, I participated in the run. So my first distance was 10 kilometers at Jamshedpur Runathon, and I had prepared 0, or maybe you can say the previous day 3 kilometers only for the run, and I completed that in 87 minutes. So that's how my running journey started, and it's been 7 years, and I have not looked behind since, and I've been continuing running injury free, thanks to God, and to my regime and schedule as well, and that's about it. राइट. और लोगों को ना अभी नाउ सिंस यू आर इनटू रनिंग एंड यू रन मैराथन्स एंड एवरीथिंग, तो लोगों को क्या ऐसी 3 चीजें हैं जो रनिंग के बारे में नहीं पता? Okay. So in running, maybe it would sound very cliche, but there's a thing called, if you want to run,
the best time to start running was yesterday, and the second best time to start running is just now. So there's no perfect time for running. You can run any day, anytime, but you have to find your own community, own tribe. So the thing about running is about consistency. So there's again a quote saying ki hard work will always beat talent. Okay, you would know there are many runners coming from Kenya, Jamaica who are very gifted runners. They are gifted in their bloodstream only, in their genes, that they are very exceptional runners. But again, if someone is very consistent, very dedicated to the sport, to the craft, they can overachieve it. So in general, people don't know this, that just the act of starting on the line, getting to the start line is itself winning. You just show up on the event, show up on the morning. That is the one thing which everyone should remember. Second thing I will feel is कि there is enough content about running all across formats. YouTube पे, Instagram पे अलग अलग apps हैं, Nike Run Club है, Adidas Running Club है. तो उस पे आप जाके आप अपने रनिंग्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं. लेट्स से आप रनिंग करके आए 2 किलोमीटर एंड देन उसके बाद आपको यहाँ नीज में पेन हो रहा है या फिर हाथों में पेन हो रहा है, कहीं पे शोल्डर में पेन हो रहा है, तो आप अपना रनिंग फॉर्म कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अपना रनिंग इकोनॉमी बेहतर कर सकते हैं. तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे लेट्स से एक एलीट रनर का एग्जांपल देता हूं मैं आपको और एक रेगुलर रनर जैसे मैं हूं, तो बिटवीन देम टू रन अ 1 किलोमीटर डिस्टेंस आई वुड स्पेंड लेट्स से क्लोजर टू 120 to 140 150 calories. But for them, because of their efficiency or in form of running, it is only 80 to 90 calories. Achha. So they are burning far less as compared to what I am burning, right? So you can imagine how much you can improve by just knowing ki kya karna hai, how to run, right? Second thing is that. Third thing, to continue this sport, you need motivation, both internal and external. ठीक है, तो external motivation will come through when you have someone called, let's say something called accountability partner. आपके पास लोग हों, आपके पास वो community हो, आपके पास वो दोस्त हो जो आपको उसके लिए वापस बुलाएं बार बार. Then only I can think कि I can say that while continuing your job, कि आपका जो डेली जॉब है उसको कंटिन्यू करते हुए भी आप रनिंग में आप कर सकते हैं. अच्छा, that is what I would like to say about that. और like अभी जैसे you said कि आपने जो फर्स्ट रन किया था वो 10 किलोमीटर्स का किया था. करेक्ट. एंड उसके लिए आई थिंक प्रेप इतना ज्यादा किया नहीं था. बिल्कुल नहीं. हाँ. बट से फॉर एग्जाम्पल किसी को भागना है 10 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स या आई डोंट नो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होता है 40 किलोमीटर्स. मतलब लोग तो हैव रन मोर देन 212 किलोमीटर्स और 480 किलोमीटर्स इन वन सिंगल गो आल्सो. अच्छा. So that is what happens. Officially also 480 kilometers. There's a trail run called in US. So that is Appalachian Trail. Okay. So that is 480 kilometers around a lake. नहीं, but ऐसे normally like say normally you can Olympics में 42 kilometers is the 42 kilometers marathon. Yeah. तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? So I'll tell you, after I completed my 10 kilometers, I got into this app called Nike Run Club. Okay. So इस app में, so I'm not promoting that app, but again this feature is present across any app. So what I did, I downloaded that app. In that app, there are guided exercises, guided weekly mileage things, which the coach will tell you how to prepare for a run, what to run, depending on your initial workout level, depending on what you are aiming for. So that let's say if you are running for 5 days a week, then 2 days you have to rest, or 1 day you have to do strength training to complement that. So this is how you can start. And as you said, the marathon distance will take around 13 to 14 weeks for anyone to run. Achha. For any normal human being having a BMI of close to let's say 28, 29, I am got a little fat actually. मेरा BMI थोड़ा ऊपर साइड में है. But any human being around 28, 29 can run and train for a marathon in 13 weeks. 3 months is the ideal time, 3 to 4 months. Okay. Yeah. And क्या diet लेते हैं आप? Is there a special diet for say running a marathon or something? Yeah. So when you run, so you engage your slow twitch and fast twitch muscle fibers. So these are two types of muscle fibers in your body, in your legs only. So ये दोनों muscle fibers का अलग अलग needs होता है. तो people have to accustom their daily intake according to that. So a little bit higher type of protein. So अभी आप देखते हैं आपके ads में भी अक्षय कुमार आके बोलता है कि 1 ग्राम पर
kg of body mass, you have to consume protein, right? So if you are running, if you are doing weightlifting, so you have to consume a little bit more. So 1.2 to 1.6 gram of protein per kg of body mass you can take. Some supplements also like B12 और vitamin E, omega 3 acids. Because क्या होता है ना, ये हमारे in general जो खाने की पद्धति है, let us say whatever पालक you are consuming, whatever nutritious food you are consuming, the body is not able to absorb this. ठीक है? So for body to absorb this, these are available widely in supplement forms across. And then so there are different types of nutrition. I can tell you more later on in the podcast. Like what do we take before run, what do we take during run, what do we take after run. अच्छा, ऐसा तो भी ये है. तीनों अलग अलग kind of intakes we take as a food as a runner on the race day. हाँ. And leading up to the race day, as in general, what I have said that you can take. Requirement अच्छा रखो. हाँ, requirement अच्छा healthy रखो. diet खाओ. Not differing much to what your dada dadis might have been consuming. Okay. So traditionally, running now people have based this a very expensive sport, saying you have to consume this BCAA, you have to consume this creatinine, you have to consume these all things. So I personally believe this might help some segment of people who are not able to consume homemade food, but whatever your homemade food your mom gives you, that would be enough for you to consume. And just to tell you, the Olympic runner Eliud Kipchoge, he is very famous all across the world. Yeah. So he consumes rice and potatoes. अच्छा. Ugali is the term in Ethiopian. In the Ethiopian diet, they consume that thing which is made up of rice and potatoes. तो ऐसे separately protein कुछ भी नहीं लेते. He might have been taking, but I'm telling you the majority part of the diet is this only. Major तो वही है. Major part is this only. और जैसे आपने बताया, मतलब रन के पहले क्या खाते हैं, रन करने के टाइम क्या खाते हैं, बाद में क्या खाते हैं? तो it depends what kind of running you are doing. So let's say मेरे हिसाब से अगर आप 1.5 घंटा दौड़ रहे हैं, या फिर मान लीजिए अगर आप 12 किलोमीटर तक दौड़ रहे हैं, तो आपको कुछ भी एडिशनल प्री वर्कआउट लेने का जरूरत नहीं है, कुछ भी खाने का जरूरत नहीं है, ठीक है? But only if you're running for, let's say, more than 2 hours or 2.5 hours, going more than 25 kilometers, 30 kilometers, then you can take maybe, मैं जैसे personally peanut butter and jam लेता हूँ with brown bread, without roasted, ठीक है? People prefer dates, some people prefer bananas, ठीक है? कुछ लोग को अगर दूध जमता है तो लोग दूध भी लेते हैं, but I prefer this simple of bread and peanut butter and jam. This is before run. During run, I would say again, what my thing is कि I consume electrolyte every 3.5 kilometers. अच्छा. And next 3.5 kilometers I consume water. Okay. At 100 ml, 200 ml, up depending upon the weather also. If the weather is very humid, very hot, I'm continuously losing water through my skin or perspiring more, then I would consume more water. Okay. तो वो एक particularly person के हिसाब से they can adjust. What I consume, I have told you. Then on the run, you can consume slow sugar releasing carbs like dates, which release sugar gradually. Okay. Or walnuts, which release sugar gradually. Okay. And you won't believe, this is fun thing to share. Ultra marathons are distances which is more than 42 kilometers. Okay. So any distance you run after 42 is ultra marathon. Ultra marathon. Okay. 50 kilometers, 100 kilometers. So can you guess what those guys would be consuming? The people who are doing ultra marathons. भागते. हाँ, भागते. वो wild guess can you take? वो लोग केला खाते होंगे. केला खाते होंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया रन के दौरान. They take Coca-Cola, thumbs up. हाँ. Thumbs up पीते हैं. उसमें तो क्या शुगर होता है? थम्स अप में कैफीन भी होता है. कैफीन भी होता है. हाँ. तो फॉर योर बॉडी टू स्टे इन अ एलिवेटेड स्टेट ऑफ heightened state of concentration while running, you need caffeine also. अच्छा. हाँ. तो आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल फास्टन अप है और बाकी सारे कंपनीज भी हैं जो लोग एनर्जी जेल्स निकालते हैं. हाँ, जो वो फुटबॉलर्स लेते हैं. वो एक सक करके देन फेंक देते हैं. वैसे जेल्स आप ड्यूरिंग रन्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, जो दोनों फॉर्म में होता है, कैफिनेटेड, नॉन कैफिनेटेड. कुछ को वो जमता है, कुछ को वो नहीं जमता है, क्योंकि क्या होता है ना, बॉडी में जब कैफिनेटेड जेल जाएगा तो इट विल एब्जॉर्ब वाटर. राइट. तो यू हैव टू, देखो, रनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द स्पोर्ट ना जहां तुम अपने बॉडी को बहुत ज्यादा जानने लगोगे. यू वुड नो कि मेरा
चाल क्या खराब है, चाल क्या ठीक है, किस तरीके से मैं सोता हूँ, व्हाट इज माय रेस्टिंग हार्ट रेट, व्हाट इज माय हाउ माय मूड चेंजेस डिपेंडिंग ऑन मैं रात को क्या खाया। अगर मैं रात को ऑयली खाया तो मेरा रन कैसा जाएगा, ये भी तुम जज कर पाओगे। सो यू विल कम वेरी क्लोज टू योर बॉडी। And the third thing is, after the run, you should consume something sugary, which will give you instant hit of glucose, because you have lost glucose over the run. So, जैसे आज कल आप जब भी कोई रनिंग इवेंट में जाओ तो शीरा देते हैं, या कोई केक हो गया छोटा सा, वो आप खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, उसमें मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, वो हेल्प करता है काफी ज्यादा मसल रिकवरी में। और आफ्टर यू गेट टू योर होम, यू कैन हैव सम प्रोटीन शेक ले सकते हैं, या फिर एक walnuts, and then again that badam will also help. Anything which will give you protein and easy to absorb. And I think ये तो हो गई बात कि क्या खाना चाहिए, बट अदरवाइज एज अ कॉन्सेप्ट ना मुझे यार रनिंग बहुत बढ़िया लगता है। मैं भी करता था रनिंग, अभी तो फिलहाल क्या जिम में वर्कआउट करता हूँ, बट रनिंग जब मैं करता था ना तब मैंने ट्रेडमिल पे अभी भी रन करता हूँ, बट दैट इज आई थिंक नॉट द सेम एज रनिंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट्स। करेक्ट है, क्योंकि जब वो करते हैं ना तो ऐसा माइंड में ऐसा एक मेडिटेशन टाइप सिचुएशन आ जाता है। मेरे ख्याल से माइंड का मतलब माइंड को थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा बेटर फील करने के लिए भी आई थिंक इट हेल्प्स। सो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? सो जैसे आप चॉकलेट खाते हैं, डार्क चॉकलेट खाते हैं, तो क्या क्या मिलता है अपने माइंड को? एक हार्मोन रिलीज होता है माइंड में, डोपामिन। सेम इट कम्स व्हेन यू रन लॉन्गर डिस्टेंसेस, ठीक है? तो आप जैसे वो मेडिटेशन वाला एक वर्ड आपने यूज किया आपके क्वेश्चन में, तो मेरा पर्सनली है कि जब भी मैं 6 किलोमीटर क्रॉस करता हूँ ना कोई भी रन पे, देन आई गो इनटू दैट स्टेट कि वो मैं हिट कर दिया हूँ, एंड उसको बोलते हैं रनर्स हाई। या तो रनर्स हाई इज अ स्टेट व्हेन समवन इज अचीव की उसमें ना आपका बॉडी विल फील लाइक यू आर ग्लाइडिंग थ्रू द रोड्स। ओके, यू विल फील योर स्ट्राइड्स गेटिंग स्मूदर, योर cadence is in ideal condition. So cadence is a word which I just threw in. People can look up online what is that, and then your stride will be in harmony. Yeah, and this wind will be flowing through your cheeks and shirts very easily, and you will feel ki you are one with the run. That's how I would describe it. And the experience, what you are just saying, running on treadmill versus running on roads is very different, because when you run on roads, you encounter multiple things. You are not just tackling through the pace which you are setting on the treadmill. You are encountering obstacles. You are encountering people around it. You are encountering lush green things. So as such, science has said कि जब भी कोई आदमी green देखता है तो उसको calmness मिलती है. So whenever you run outdoors, you are already in a calm state, as opposed to when you are running in treadmill. So just to benefit our listeners, I would like just to add 5 levels of surfaces to run on. Okay. So the worst surface, जो सबसे घटिया surface होता है, that is paved blocks. Okay. जो आप usually फुटपाथ पे देखते हो, जो चेकर्ड टाइल्स होती हैं, वो worst surface होता है. सबसे घटिया surface होता है रन करने. I would imagine कि ऐसा पत्थर पे रन करना रफ होगा. नहीं, वो that is the worst one. Okay. The second worst one I would say is on the treadmill. कि वो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो अपने लेग्स को इतना बढ़िया से रिएक्टिव रिस्पॉन्स दे पाएगा. So that's why I consider that to be the second one. The third best surface is tar road. Okay. जो कि इंडिया में मोस्टली हर जगह होता है. tar roads are the roads which are used, मतलब वो जो रहते हैं usually marathons में उस पे ही बात. हाँ, तो concrete roads are the worst. अच्छा. concrete roads खराब है, tar roads better है. So if you are getting a chance तो tar roads पे रन कीजिए. And the best surface is on the मिट्टी, the ground, which you are running on. ठीक है. अच्छा. So that is the best one, and उससे भी better because no one has, मतलब not everyone has accessibility to that. Synthetic track, which is on the Olympic circuit on 400 meters, जो 100 meters, वो best होता है क्योंकि आपको एक ground को energy मिलती है. So imagine when you're running, you're pushing the ground. That you're doing this. You're just pushing the ground to propel you forward. Right. जब आप synthetic track में run करते हो ना, तो it will send you 4% energy back. Okay. हाँ, तो दिस इज व्हाट रनिंग मैकेनिक्स और रनिंग साइंस इज. और ऐसे कुछ शूज भी आ चुके हैं अभी मार्केट में. फॉर एग्जांपल नाइकी पेगासस अल्फा फ्लाई 3, अल्फा फ्लाई 2. दीज शूज आर मच मोर रिस्पॉन्सिव इन द टर्म्स ऑफ दे विल गिव बैक टू द रनर. हाँ, शूज पे अभी हम लोग टॉपिक पे आ ही गए, तो मुझे ये पूछना है कि फॉर अ बिगिनर जो रनिंग अभी भी स्टार्ट ही कर रहा है, करेक्ट, और बजट कम है, कौन सा शूज लेना चाहिए? और
आगे जाके उसको जैसे बजट बढ़ता है, विच इज द बेस्ट शू? रनर्स तो काफी पिकी होते हैं शूज के मामले में. दे हैव देयर ओन फेवरेट शू व्हिच दे विल नेवर थ्रो अवे, एंड वी विल गेट दिस फ्रॉम आवर पेरेंट्स एवरी नाउ एंड देन. So whenever a runner starts, they can buy a shoe anywhere in the range of 2,000 rupees to 3,000 rupees. Nike Winflow 7 is one of the good shoe I would recommend to any runner. Reebok Energy Floatride 2 is also one of the good shoe. New Balance Arahi V2 is a good shoe. So these are good training shoes to start with. Okay. कितने के हैं ये शूज? 2-3 हजार के आसपास आ जाते हैं. ठीक है. But there are shoes starting from 700-800 also. You can start with them also if you think you will not be consistent. अच्छा. But running एक ऐसा स्पोर्ट है ना, it is addictive. हाँ. नशा की तरह है. और एक बार वो आपको नशा लग गया, तो इससे अच्छा नशा और कोई नहीं. राइट. है ना. तो वो एक चीज है. एंड देन हम लोग जैसे जो अच्छे रनर्स होते हैं, इफेक्टिवली जो मतलब रेगुलरली रनिंग करते हैं, उनके पास अलग अलग तरीके के रनिंग डेज के लिए अलग अलग शूज होते हैं. तो लेट्स से इफ आई हैव लॉन्ग रन, तो मैंने एक लॉन्ग रन का शू है, Asics GT 2000 इज वन ऑफ द शू फॉर लॉन्ग रन्स. अब लॉन्ग रन्स में कैसा शू खरीदे? जिसकी सोल मोटी हो, ठीक है, जिसमें ज्यादा कुशनिंग हो, जो आपको लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए करेगा. उसमें स्पीड नहीं मिलेगा, बट वो एंड्योरेंस बिल्ड करने के लिए अच्छी शू है. कुशन अच्छा होना चाहिए. ठीक है. देन कुछ शूज होती है जो आपको इंटरवल ट्रेनिंग के लिए चाहिए होती है. जैसे मैं यूज करता हूँ Adidas SL 2.0. ठीक है, या सुपरनोवा ऐसे शू है. तो वो सारे शूज आपके स्टैक बहुत हल्की शूज होंगी, पर आपका जो स्टैक हाइट होगा या फिर जो कुशनिंग होगी वो बहुत पतली होगी. रबर भी बहुत कम होता है उसमें, बट यू कैन रन शॉर्टर डिस्टेंसेस एट अ फास्टर पेस. ओके. ये हो गया इंटरवल रनिंग के लिए. ठीक है. देन देयर आर शूज विच इज रेस डे शूज, जो मतलब आप रेस के दिन पहनोगे, विच इज लाइक यू कैन से सबसे प्रीशियस शूज होंगे, जो सबसे महंगे होंगे आपके पास. ठीक है. एंड वो शू आप खाली रेस के दिन पहनोगे. तो ब्रुक्स हाइपरियन एलीट 3 इज वन ऑफ द शू विच आई ओन आल्सो. तो वो एक शू है जो मुझे बहुत पसंद है. एक्चुअली मेरा पैर का साइज UK 12 है. Okay. एंड वो चौड़ा है मेरा थोड़ा पैर, तो उसके लिए ना ब्रुक्स के अच्छे शूज मिलते हैं. अच्छा. ठीक है. तो वो एक शू है जो मैं बहुत यूज करता हूँ. And like again, these shoes will be ranging from 18,000 rupees, 17,000 rupees to 11,000 rupees. You can get on sale also. तो ऐसे year round sale निकलते रहते हैं. You can get the shoes also. But again, this will come once you cross that consistently. कि हफ्ते में आप 5 दिन दौड़ रहे हो, 3 दिन दौड़ रहे हो. तभी मतलब है ये सब लेने. हाँ, ये सब लेने का तब मतलब है. When you are going to participate in races and all. Otherwise, आप अगर normal बस अपने fitness के लिए कर रहे हैं, it is as a daily activity lifestyle के लिए 4 से 5,000 के shoes are more than enough. That's good enough. And like since you mentioned क्या बोलते हैं sport, as a sport अगर हम लोग देखेंगे कि मैराथन भागना, तो अभी इंडिया से भी ओलंपिक्स में जाते हैं लोग. बिल्कुल. तो हमारा मैराथन टीम है ऑफिशियल. वेरी सैड टू से आदित्य. सो एक्चुअली क्या है कि मैराथन में हर एक ईयर में एक कट ऑफ रिलीज होता है. ओके. मेंस एंड वुमेन्स का. हाँ. तो मेंस का कट ऑफ लास्ट ईयर था 209:12, 209:15 एक्चुअली. 2 hours 2 घंटा 6 मिनट, सॉरी 206:15, 2 घंटा 6 मिनट 15 सेकंड्स के अंदर में जो कर लेगा 42.2, उसी को क्वालिफाई करेंगे. 42 किलोमीटर्स. हाँ, 42.2 जो 2 घंटे में 2 घंटा 9 मिनट 15 सेकंड्स में कर लेगा, उसको ही अलाउ करेंगे. ओके. ठीक है. एंड देन उसमें भी अगेन 18 से 26 लोग भागेंगे. वुमेन्स का है 2 घंटा 26 मिनट 50 सेकंड के आसपास. ठीक है. तो आज तक हमारे पास इंडिया में ऐसा कोई रनर हुआ नहीं जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था. और इंडिया का नेशनल रिकॉर्ड आज 2025 है. 1978 में 47 इयर्स पहले शिवनाथ सिंह ने बनाया था 2 घंटा 12 मिनट का. ठीक है. 2 घंटा 12 मिनट में पूरा फुल मैराथन किया है उन्होंने. एंड वो जमशेदपुर से आते हैं. एंड दैट इज द बेस्ट टाइमिंग विच वी हैव गॉट टिल नाउ. एंड वेरी सैड टू से, बट दैट रिकॉर्ड इज स्टिल स्टैंडिंग. नोबडी हैज ब्रोकन इट. एंड मतलब इंडिया इज येट टू ब्रेक इनटू द मैराथन सीन एक्चुअली. अभी ट्रैक एंड फील्ड में आप देखते होंगे रिसेंटली द्युति चंद हैं, या फिर हिमा दास हैं, ज्योति याराजी हैं. हमारे पास एक अविनाश साबले हैं जो बहुत अच्छे स्टीपल चेज रनर हैं, जिन्होंने इस बार ओलंपिक्स में भी अच्छा किया. तो ये सारे कुछ नो फेसेस हैं जो ट्रैक एंड फील्ड में इंडिया को अच्छा कर रहे हैं.
बट फिलहाल इंडिया को मैराथन सीन में ब्रेक इन करने के लिए या फिर ट्रैक एंड फील्ड में इंप्रूव करने के लिए अभी बहुत लॉन्ग वे है. इंडिया नीड्स टू. और कितने स्पीड पे भागना पड़ता होगा ऐसे 2 घंटे? 2 घंटा के आसपास इफ यू से तो अराउंड 434-435 मिनट्स पर किलोमीटर. सॉरी 254 से लेके 3 मिनट्स पर किलोमीटर के रेंज में आपको भागना होगा. 1 किलोमीटर 3 मिनट के अंदर. अच्छा. कंटिन्यूअसली फॉर 2 आवर्स. तो कितना नहीं, सो किलोमीटर्स पर आवर कितना स्पीड होता होगा वो लोग? किलोमीटर्स पर आवर आई हैव टू कैलकुलेट. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. अच्छा. क्योंकि इतना स्पीड 2 घंटे सस्टेन कर पाना करेक्ट इज मतलब नेक्स्ट लेवल थिंग. हाँ, तो मतलब इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड और व्यूअर्स विल बी इंटरेस्टेड इन दिस, तो एक डॉक्यूमेंट्री है ब्रेकिंग 2 करके. अच्छा. जो नेटफ्लिक्स पर भी होगी. हाँ. और इसको नैट जियो ने प्रोड्यूस किया था 2-3 साल पहले, जिसमें एलियड किपचोगे इज द मेन कैरेक्टर. किपचोगे. हाँ, किपचोगे का मैं नाम बार ले रहा हूँ, बट ही इज द बेस्ट वन टिल नाउ. अभी तो उससे भी बेटर लोग आ गए. उन्होंने ही अंडर 2 आवर्स किया है. करेक्ट. इज द ओनली पर्सन 159-58. ओह, 2 सेकंड कम. ठीक है. हाँ. एंड दैट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड एज ऑफ नाउ. हाँ. बट फिर बाद में वो रेस को वर्ल्ड एथलेटिक्स ने माना नहीं. अच्छा. हाँ, क्योंकि वो रेस को बहुत सारे थिंकिंग के साथ डिजाइन किया गया था, जस्ट टू प्रूव कि ह्यूमन की कैपेबिलिटी है 2 घंटा ब्रेक करना. मतलब आप समझो, जब आप रन करते हो ना, तो आपका तो एक पैर है जो ग्राउंड को कर रहा है पुश. सामने से हवा भी आ रही है, वो भी आपको ड्रैग करेगी. राइट. तो उन्होंने एक वी शेप फॉर्म में लोगों को दौड़ाया अपने आसपास. तब जाके वो बैरियर ब्रेक हो पाया. अच्छा. एंड वो लोग भी चेंज होते रहे उस रन के दौरान. वो बेसिकली वो थोड़ा असिस्टेड टाइप का रन था. हाँ, असिस्टेड टाइप का रन है. और जो उसने शूज यूज किए थे, उसका स्ट्राइक हाइट 40 mm से ज्यादा था. अच्छा. 40 mm से कम का ही शू उसका स्ट्राइक हाइट ओलंपिक स्टैंडर्ड्स में अलाउड है. ओके. तो शू थोड़ा इलीगल टाइप हो गया था. इलीगल टाइप हो गया था. बट और अभी भी मतलब लीगलिटी ऑफ शूज में बहुत कंट्रोवर्सी चलते रहता है, ऑन एंड ऑफ. भी रिसेंटली भी एक हुआ था. बट इसमें कैसा है ना कि टू ब्रेक दैट 2 आवर्स एंड उसके पीछे नाइकी ने उनके साथ क्या क्या किया, उनके VO2 max को कैसे इंप्रूव किया, एक ह्यूमन उस लेवल पे कैसे पहुंच सकता है, उसको भी मतलब समझना बहुत बड़ी बात है. मैं एक टर्म यूज किया हूँ अभी, VO2 max. ये आपको पता है क्या है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. हाँ, तो इसमें कैसा है कि आप अगर मान लो 2 लीटर ऑक्सीजन ले रहे हो, तो उस 2 लीटर ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड VO2 max. तो मेरा ये गार्मिन वॉच है. इस गार्मिन वॉच में मेरा VO2 max 47 है. ओके. तो मैं जितना ऑक्सीजन लेता हूँ उसका 47% कम यूज कर पा रहा हूँ मैं. बाकी मेरा जो 53% ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकल जा रहा है, यूज ही नहीं कर पा रहा है. मेरा लंग्स एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है. आप इमेजिन कर पाओगे एक ओलंपिक रनर का कितना होगा वो नंबर? अराउंड 85-86. करेक्ट, बैंग ऑन. 86. ओह, एलियड किपचोगे का 86 था. इज द VO2 max in which he has ran 2 hours. ओह, क्या बात है. तो मतलब वहां तक आपको पहुंचना होगा पहले. करेक्ट. एंड जस्ट टू आई एम सेइंग ये 47 को मैंने 56 तक पहुंचा था. एंड वो पहुंचने के लिए मुझे 1.5 साल लग गया था. तो 8 पॉइंट ऑफ VO2 max पहुंचने के लिए 1.5 साल लगेगा. इट्स लाइक लूजिंग वेट. स्टार्टिंग में आसान है, बट जैसे आप कम होते जाओगे, पास में आते जाओगे, बहुत मुश्किल होगा. तो एक पॉइंट्स को इंक्रीज करने के लिए विल टेक 6 months 7 months. बहुत एफर्ट लगेगा. यू हैव टू कीप योर डाइट्स वेरी क्लीन. सो दोज आर डिफरेंट लेवल. एंड हम लोग तो जैसे मैं एज ए रनर आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मेनी रेसेस ऑल अक्रॉस इंडिया, ऑल अक्रॉस बॉम्बे एज वेल. एंड आई हैव कम टू रनर्स अक्रॉस ऑल लेवल्स. आई हैव सीन रनर्स who are at the front of Indian running scene. So Nihal Beg है. Nihal Ahmed Beg is one of the runner who has ran 2:32. अच्छा. 2 घंटा 32 मिनट फॉर अ फुल मैराथन. मतलब वन ऑफ द बेस्ट रनर्स इन इंडिया. ओके. ठीक है, फॉर अ फुल मैराथन. एंड आई हैव सीन रनर्स हु आर कंप्लीटिंग देयर रन्स इन मोर देन 8 hours also. Full marathon. So the motivation for them is the same, to get the next day better. So that is what running sport is all about. Another thing is अभी बहुत बातें चलती हैं कि अरे एज इंडियंस अपना जेनेटिक्स इतना कुछ खास नहीं है. बट आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, वो एक स्ट्रॉन्ग मैन होल्ड था अभी रिसेंटली. यू हैव टू होल्ड 2 pillars एंड वो स्ट्रॉन्ग मैन करते हैं.
तो उसका कुछ रिकॉर्ड 1 मिनट समथिंग समथिंग है। तो एक इंडियन ने, विस्पी खराडी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज हिज नेम, उसने वो ब्रेक किया एंड फिर वो बोलता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, इंडियन जेनेटिक्स भी बहुत अच्छे हैं, इवन वी कैन डू दैट। बट समहाउ ये रनिंग में ना, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज है उसमें से ही लोग सबसे आगे आते हैं। तो ऐसे जेनेटिक्स में कुछ फर्क है क्या? तो आई वोंट ब्लेम इट ऑन जेनेटिक्स, बट एक चीज होता है एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। अच्छा। तो जैसे मैंने वो VO2 max का एग्जांपल दिया, अब आप समझो, आप जो यहाँ पे मेरे साथ बात कर रहे हो मुंबई में बैठ के, आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, ऑलमोस्ट एट सी लेवल हो आप, क्योंकि सी, अरेबियन सी बगल में है। अब यही बात हम लोग जाके हिमाचल या उत्तराखंड में करेंगे या कश्मीर में जाके करेंगे, एक हिल टॉप के कैफे में, तो क्या होगा, वहां पे एयर थिन होती है, तो आपका जो ब्रीदिंग का रेट है वो और गिर जाएगा, जो आपका ऑक्सीजन का एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो और गिर जाएगा। तो वहां पे जो आपने एग्जांपल लिए, केनियन रनर्स हो गए, इथोपियन रनर्स हो गए, युगांडा से जो रनर्स आ रहे हैं, दोज रनर्स आर डूइंग हिल ट्रेनिंग और एक्लिमेटेशन ट्रेनिंग फ्रॉम द बर्थ गो। तो बचपन से वो जिंदगी भर वो वैसे ही रोड्स पर हैं, वैसे ही जगहों पर हैं जहां पे मे बी लेट्स से पानी के लिए उनको 10 किलोमीटर चलना पड़ जाए। ठीक है, मतलब एज अ डेवलपिंग कंट्री वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सिचुएशन हियर, बट इफ यू से मे बी लेट्स से उत्तराखंड में लोग हैं जो हायर एल्टीट्यूड में रहते हैं, उनको, उनके पास आप देखिए वो नॉर्मल, एंड जो भी इंडिया में तो आप देखेंगे पहाड़ी रनर्स आर डूइंग वेरी वेल, जो पहाड़ से आते हैं हमारे रनर्स। ठीक है, सो वो क्यों है? बिकॉज their legs, their breathing capacity have developed accordingly। ठीक है, तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि एलिड किपचोगे ने एक संस्था स्थापित की है उनके कंट्री में, जहां पे एलिट रनर्स कम, अमेरिकन रनर्स, यूरोपियन रनर्स कम टू ट्रेन देयर बिफोर द ओलंपिक्स, जस्ट टू गेट द हैंग ऑफ कि भाई एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में, एक ओलंपिक लेवल एनवायरमेंट में कैसे जिया जाता है। एंड टू से, मतलब टू compete at that level you need some kind of detachment also। So I've seen that podcast, so he says कि मतलब in a week 5 days he trains, 2 days he keeps for family। Okay। तो थोड़ा 5 दिन वो डिटैच्ड रहते हैं अपने फैमिली से, एंड देन ही इज वर्किंग ऑन हिज मतलब माइंड, हिज mental fortitude, he's building it up, and with his friends and all he's working towards the better running physique or a better goal। So that's how elite runners train। And as such I would say there is no difference between मतलब Indian genetics as well as their genetics। We have seen good runners, Indian origin runners running in American college universities and killing there actually, to say। तो ऐसे genetics तो genetics का you cannot blame it। There are the good runners all across India। और ये मैराथन तो लाइक हर कंट्री का एक टीम होगा, करेक्ट? तो इज इट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट या फिर इट्स अ टीम स्पोर्ट? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने कहीं सुना था कि फॉर एग्जांपल साइकिलिंग में टूर डे फ्रांस होता है, तो उसमें हर कंट्री का अपना एक टीम रहता है, तो अब वो लोग है तो वो इंडिविजुअल स्पोर्ट, लेकिन उसको खेलते हैं एज अ टीम स्पोर्ट। की अगर 5-6 साइकिलिस्ट है तो उनको पता है उसमें से ये वाला बंदा ही जीतेगा, इसमें कैपेबिलिटी है, तो बाकी लोग दूसरों को मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करने में लग जाएंगे। करेक्ट। हाँ, तो ऐसा मैराथन में होता है? तो ऐसा मैराथन्स में आई वुड से नहीं होता है, मतलब देयर इज नॉट दैट मच लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको रनिंग स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक कम्युनिटी चाहिए, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए, और एज सच एक नॉर्मल लाइफ का ज्ञान है कि आदमी अपने आसपास के जो 5 लोग होते हैं ना, उसका एवरेज होता है। आप अपने से आसपास 5 एवरेज लोगों को रखोगे तो आप भी एवरेज बन जाओगे, अपने से बेटर लोगों को रखोगे तो आप भी इंप्रूव करोगे। सेम एज दैट। सो यू कैन सी, एक मैंने क्लेटन यंग का पॉडकास्ट देखा है। क्लेटन यंग इज वन ऑफ द रनर फ्रॉम अमेरिका हु हैज पार्टिसिपेटेड दिस ईयर इन द ओलंपिक्स एंड ही हैज सिक्योर्ड टॉप 10 फिनिश। सो वो जो पॉडकास्ट है A6 के द्वारा ऑन यूट्यूब, एनीवन कैन सी, उस पॉडकास्ट में दिखाया है कि एक कॉर्नर मैन्स है, उसका कंपटीटर ही है, वो 6th आया था, ये 8th या 9th आए थे उस ओलंपिक में। बट उनकी जो जर्नी है, वो जो मैंने बताया ना आपको कि 13 हफ्ते लगते हैं किसी भी नॉर्मल इंसान को मैराथन भागने के लिए, वो 13 हफ्तों में वो सेम बोल्डर के ग्राउंड में उन्होंने कितना ज्यादा अपने साथ एक कमराडरी शेयर की, अपने फैमिलीज की कमराडरी शेयर की,
अब एक आप सोच सकते हो एक ओलंपिक रनर के पीछे कितने सारे लोग होंगे, उसका ट्रेनर होगा, उसका फैमिली होगा जो उसकी न्यूट्रिशन को देख रहा है, उसका फ्रेंड्स होंगे जो उसको पुश कर रहे हैं। सो अगर अगर आपके पास एक बेटर पर्सन नहीं है आपको पुश करने के लिए ऑन योर टायर्ड डे, on your days when you don't want to run, on days when you are feeling fatigue, then you will not able to achieve the greatness, I would say. So I would recommend anyone to go and watch that particular build up to the Olympic marathon. And running is a sport which is individual as much as a team sport, I would say. अच्छा, it is equally because but ऐसे वो अलाउड नहीं है किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना ना, है, वैसा कोई अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एंड नो वन डज दैट एंड यू गेट फाउल्ड आल्सो इफ यू डू दैट। अच्छा अच्छा, हाँ। सो वैसा तो कोई करता भी नहीं है, एंड देन इट इज आल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज रोड्स इतने बड़े बड़े होते हैं, एनीवन कैन गो फ्रॉम द साइड। ठीक है, एंड देन एज सच आप देखेंगे कि देयर आर फिनिशर्स। सिफान हसन इज वन ऑफ द फीमेल एथलीट्स इन द मैराथन सर्किट। उन्होंने 100 मीटर पहले रनिंग लंदन मैराथन के 100 मीटर पहले she has just surged past the first ranker and then gone through it. एंड आप सोच, एंड वो जो आप बता रहे हैं ना जो ऑब्स्ट्रक्शन वाला चीज, उन्होंने जस्ट एक कॉर्नर में उनको टच करते हुए शोल्डर को रब करते हुए आगे बढ़ गई थी, एंड दैट वाज आल्सो अलाउड। सो एज सच कोई टीम जैसे फॉर एग्जांपल वो आई थिंक इथियोपिया से है या अफ्रीकन कंट्री से ही है, उनके टीममेट्स कोई फ्रंट रनर को जाके घेरता नहीं है, वैसा कुछ नहीं होता है। एवरीवन हैज देयर ओन पैक एंड यूजुअली लोग पैक्स में रन करते हैं। अच्छा, हाँ, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से 42 किलोमीटर है तो मेरे को पता है मैं 40 किलोमीटर के बाद सर्च करूंगा। हाँ, तो 40 किलोमीटर तक मैं अपना पेस कंजर्व करूंगा और लास्ट के 2 किलोमीटर में मैं सर्च करूंगा। ओके, दिस एवरीवन नोज। तो वो अमेरिकन टीम अपनी ये प्रैक्टिस करके आई। ग्रीक टीम होगी, ग्रीस टीम को सोचेंगे कि नहीं मैं 15वें किलोमीटर से सर्च करना चालू करूंगा। तो एवरीवन रन्स इन अ पैक इन द मैराथन डिस्टेंस। ओके ओके ओके, दैट इज हाउ, मतलब वो काइंड ऑफ थोड़ा सा एक टीम स्पोर्ट उसमें बन जाता है। हाँ, मतलब इट इज अबाउट की मैचिंग योर पेस एंड एवरीवन नोटिसेस ईच अदर्स मूव्स, कि अगर कोई सर्च कर रहा है तो उनको पता है कि ये सर्च होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो यू हैव टू नो वेदर यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट सर्च और नॉट। ओके ओके, ज्यादा ही इमोशनल होके या पैनिक होके हम भी सर्च करें वैसा नहीं चलता है। करेक्ट। तो रनिंग में एक कॉन्सेप्ट है नेगेटिव स्प्लिट का। अच्छा, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो, तो पहले 5 किलोमीटर आप 26 मिनट में दौड़ो, नेक्स्ट 5 किलोमीटर आप 24 मिनट में दौड़ो। ओके, तो हो गया 50 मिनट। हाँ, तो ये हो गया आइडियल। ओके, सो दैट्स हाउ एलीट रनर्स रन। ओके, कि वो फर्स्ट हाफ ऑफ द रेस दे विल रन एट अ स्लोअर पेस, ओके, एंड देन दे विल डू नेगेटिव स्प्लिट अच्छा, द नेक्स्ट हाफ ऑफ द रन। ओके ओके ओके, सो दैट इज व्हाट रनर्स ट्राई टू डू और एम टू डू ऑन मोस्ट ऑफ देयर रेसेस। और वैसे तो इट्स जस्ट अ फन क्वेश्चन, मैं ऐसे ही मुझे पता नहीं इसके लिए पूछ रहा हूँ। जैसे क्रिकेट में स्लेजिंग होती है वैसे मैराथन में स्लेजिंग होती है क्या, भागते भागते? स्लेजिंग एज सच तो आई डोंट थिंक, मतलब पीपल आर अगेन लेट्स से अगर पेरिस में ओलंपिक्स हो रहा है और एक कोई फ्रांस का रनर टॉप 5 में, तो उसको अगेन ज्यादा चीयर मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर अमेरिकन रनर्स और एनीवन एल्स। बट एज सच एवरीवन इज एक्साइटेड अबाउट द मतलब whoever is running at the front, and if they are going to break a world record तो वो तो और भी बड़ी बात होती है। and there is no sludging as such, I would say only camaraderie and cheer is there, but there have been instances where people have shown real sense of sportsmanship towards the other runner. So the case I was telling you, Sifan Hassan, so she broke the London Marathon record. So in that record, she fell down in that run, I guess. And then one of the runners, bottle of water in which we take hydration during the run. I said, na, on a longer run you have to take hydration. तो वो hydration उसका miss हो गया था. Okay. तो she could have easily eliminated her competition. But she offered उनका जूठा पानी उनको भी उसने offer किया था to just to let her maintain that pace and then maintain that area. तो अपने country के बीच में तो of course this would happen, but if you are going at an Olympic level तो cutthroat है. People would want to win the gold for their country, and they would do by all means. But again, there are fair. It is televised all over the world. It has been hugely scrutinized and criticized. So nobody does any kind of mischievous things there on. लेकिन वही ना, मतलब एक बात है कि अभी जैसे मैराथन है तो इवन इफ इट इज अ स्पोर्ट, व्हाट आई सी इज कि इसमें पैसा तो मुश्किल है, मतलब लाइक
किसी को क्रिकेटर बनना है, किसी को फुटबॉलर बनना है, वो तो बात समझ में आता है, उसमें कुछ है भी बनने के लिए। यार इसमें अभी तक हाल फिलहाल तक तो ऐसा कुछ बहुत ग्रेट इंसेंटिव लग नहीं रहा, तो व्हाई वुड समबडी वांट टू बिकम अ मैराथन रनर? Correct. Good question, I would say. So marathon running में as such, you can say if you are into the top 20, top 30 of a nation, let's say India, तो India के पास सारी के facilities हैं, who would sponsor your travel and everything, who would keep you on a payroll as well. अच्छा. There are quotas in which you can get admissions into ranks of railways, ranks of army. So जो मैंने आपको एक नाम बताया, अविनाश साबले, so he's a railway person. अच्छा, तो वो रेलवे से है, सॉरी ही इज एन आर्मी पर्सन एंड वो आर्मी से है एंड ही रन्स इन द स्टीपल चेज इवेंट। ओके ठीक है, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड अनिल सर, अनिल फ्रॉम रनहॉलिक्स टीम, ही इज इन रेलवेज बट ही रन्स इन ऑल अक्रॉस मुंबई एंड ही इज अ वेरी गुड रनर। सो यू गेट ऑफ ऑन एवरीथिंग थ्रू द रेलवेज पार्ट एंड देन लेट्स से इफ आई से अबाउट द प्राइज मनी. So the prize money was $40,000 for the first ranker in Tata Mumbai Marathon. अच्छा, $40,000? Yes. अच्छा. If you win in the elite category. हाँ. And for the Indian category also, it was around $20,000 for the first ranker. Okay. And if you break, let's say some of the events, for example, Bajaj Allianz Pune Marathon, अगर आप national record break करते हो तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे. Okay. National record. In that course. So that is what incentivizes runners to push through, incentivizes the community to get behind the runner and push through the difficult times. And of course it is not a glamorous sport like cricket where you'll get a lot of advertising, you will get a lot of ads, ad revenue and everything will be there, but yeah, it's a tough grind. And I think this is picking up in India. Marathons have boomed, I think more than 400% in India. अच्छा. Places like Chiplun. हाँ. So I'll tell you one place. So अगर आप बॉम्बे से गोवा जाओगे तो रत्नागिरी के पहले एक छोटा सा शहर आता है चिपलुन करके. राइट. तो चिपलुन में मैराथन होता है. एंड इस साल पहली बार हुआ था, मैं गया था वहां पे. अराउंड 2,500 रनर्स थे वहां पे टोटल. 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अक्रॉस. एंड उस छोटे से शहर में इतना वार्मथ, इतना हॉस्पिटैलिटी, इतना मतलब लव टुवर्ड्स रनिंग, आई हैव नॉट सीन इट. मतलब मैं रन कर रहा था एंड पीपल वेर शावरिंग, मतलब मेरे पे फूल बरसा रहे थे थ्रू दैट कम्युनिटी व्हेन आई वाज रनिंग, थ्रू दैट रूट व्हेन आई वाज रनिंग, एंड पीपल वेर ऑन द स्ट्रीट्स. सो एक रनर के लिए ना सबसे मतलब ठीक है, मेडल मिल रहा है, देन खाने के लिए कुछ मिल रहा है बाद में, एंड देन आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, फेसबुक पे लाइक्स मिल रहे हैं, ऑल दैट इज there after the event. During the event, what do you want? During the event, you want someone to cheer. During the event, you want someone to high five. Right. आपको कोई स्माइल करे आपको देख के, आपका नाम कोई आवाज दे दे. That gives you energy. So running is getting bigger in India. Running is getting popularized in India, and it is growing like anything. Places like Chiplun, I think ये पूरा इवेंट उनके ही एक म्युनिसिपैलिटी बेस्ड मतलब रनिंग ग्रुप है जो वो वहां पे म्युनिसिपैलिटी ग्राउंड में आके रन करते हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एंड इट वाज फ्लॉलेस, आई वुड से. आई हैव रन आई थिंक मोर देन 76 to 80 रेसेस अंटिल नाउ, एंड प्रीमियर रेसेस, टाटा मुंबई मैराथन, वेदांता हाफ दिल्ली मैराथन, टाटा अल्ट्रा मैराथन, ऑल दीज आर वेरी फेमस रेसेस ऑल अक्रॉस इंडिया. बट I don't think the kind of hospitality I have received in that short race of 2.5 hours is there anywhere. So that makes me very hopeful for this race, for this event actually, running. And again, मतलब आप सोचिए as a means to keep our community healthy. तो आप सोच सकते हैं US में what is the first reason of death? किस लिए लोग मर रहे हैं सबसे ज्यादा? ओबेसिटी. हाँ, ओबेसिटी. इंडिया में क्या रीजन है सबसे बड़ा डेथ का? डायबिटीज. तो अब इन सारे जो हमारे लाइफस्टाइल में डिजीजेस हैं, इनको अगर हमें टैकल करना है तो रनिंग इज द मोस्ट चीपेस्ट वे, आई वुड से द मोस्ट इंडिपेंडेंट वे. आपको कोई नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, जूते, और आपको कोई दोस्त नहीं चाहिए. बस एक गाना लगाइए ईयरफोन में एंड शुरू हो जाइए. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड मेरे लिए तो एक और हेल्प था कि कोविड था उस समय में, तो करने को कुछ ज्यादा ऑफिस में काम नहीं था,
तो आई यूज्ड टू रन 10 किलोमीटर इन द मॉर्निंग, 10 किलोमीटर इन द इवनिंग. बाप रे. ओके. एंड देयर आई लॉस्ट 26 kgs इन 3 months. वाओ. तो मैं 105 किलो से 80 किलो का हो गया था. पीपल यूज्ड टू से कि तुम्हारा को शुगर हो गया है क्या. मतलब मेरा फेस इतना ज्यादा अंदर हो गया था. एंड देन आई वाज ट्रांसफॉर्म्ड एट दैट पॉइंट. अगेन मैं वहां पे आ गया हूँ, वापस 100 किलो का हो गया हूँ मैं. बट एट दैट पॉइंट आई वाज सो मच इनटू रनिंग ओनली एंड ईटिंग क्लीन होममेड फूड. सो कोविड हैज आल्सो टॉट अस कि मतलब एक्चुअली में लाइफ में क्या वैल्यू है, कितना कम में आदमी जी सकता है. ठीक है. ट्रू. सो दैट हैज केप्ट मी मतलब रनिंग थ्रू. एंड द बेस्ट पार्ट इज आई कीप कमिंग बैक टू इट. अगर मान लीजिए 10 दिन कोई फेस्टिवल हो गई, लेट्स से दिवाली हो गया, घर में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाने बनते हैं, लोग रनिंग मिस हो जा रहा है मुझसे अगर, तो मैं वापस से स्टार्ट कर देता हूँ. राइट. यू कैन इजिली कम बैक टू दिस स्पोर्ट. ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक नहीं ले सकते हैं. सो दैट इज व्हाट आई एम होपफुल फॉर इंडिया. एंड देन इवेंचुअली इंडिया में भी इसको रिकॉग्निशन मिलेगा. पीपल विल टेक दिस इन मेन स्ट्रीम. एंड देन मे बी जब व्यूअरशिप बढ़े, जब स्पॉन्सर्स और ऐड हों, तब लोगों के पास और इंसेंटिव रहेगा इसको ज्वाइन करने का. बट एज सच आई फील रनिंग एज इंडिया में तो अभाव से जुड़ा हुआ है. कि अगर किसी को कोई अभाव है तो वो उसको ओवरकम करना चाहता है. एंड रनिंग इज द मेन टू अपलिफ्ट देम फ्रॉम पॉवर्टी. ठीक है. एंड जो आपने एग्जांपल्स बोले देशों का, इथियोपिया, केन्या, वहां पे ऐसे ही कंट्री, ऐसे ही लोग थे. उनके पास कुछ नहीं है, बट उनके लिए रनिंग इज अ नेशनल स्पोर्ट. व्हाई? क्योंकि उससे जो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, जमैका में जो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, यूसेन बोल्ट को जो रिकॉग्निशन मिला, वो तो बिकॉज ही हैज नथिंग टू मतलब गोइंग इन हिज फेवर. जमैका का नेशनल स्पोर्ट रनिंग है. बिकॉज जमैका को एक वर्ल्ड के मैप पे डाल दिया उसने. एब्सोल्युटली. राइट. आप सोचिए जमैका जैसे छोटे कंट्री का कितना जीडीपी बढ़ गया होगा इसके कारण. इतना सारा टूरिज्म आता होगा, लोग वहां जाके देख रहे हैं कि क्या किस तरीके के वहां लोग पैदा हो रहे हैं, किस तरीके का लोग वहां पे रनिंग कर रहे हैं. बेल्जियन रनर्स, अमेरिकन रनर्स गो एंड स्पेंड टाइम देयर टू रन विद दोज पीपल फ्रॉम जमैका. बट हमारे पास इंडिया में इतने सारे फैसिलिटीज हैं, इतने सारे लोग हैं, वी हैव सच अ ह्यूज पॉपुलस कंट्री. इट्स अ शेम दैट वी आर नॉट एट द ओलंपिक सर्किट एज ऑफ नाउ. बट सूनर और लेटर आई फील विल ब्रेक थ्रू इन. एंड जैसे नीरज चोपड़ा ने हमारे इंडिया के लिए गोल्ड लाया, वैसे मे बी समडे इट विल बी देयर दैट वी आर ऑन टू द ओलंपिक होना तो चाहिए पोडियम. या सो मुझे ना एक सवाल पूछना है. सो ये जो आप शर्ट पहने हैं ना, तो ये मुझे ऐसा लगता है कोई रन से ही आप आए हो. करेक्ट. तो ये कोई स्पेशल शर्ट है क्या? क्या इंसिडेंट है, क्या वो चीज है? तो ये तो मैं बताना चाहूंगा पहले तो कि मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हुई थी कि मैं इस इवेंट के लिए भी, इस पॉडकास्ट के लिए, जो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है उसके लिए भी मैं एक रनिंग टी शर्ट पहन के आ गया. और मैं घर पे भी रनिंग टी शर्ट ही पहन के रहता हूँ. ठीक है. एंड जब लोग बोलते हैं ना कि क्या मोटिवेट कर रहा है आपको रनिंग करने के लिए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, मैं बोलता हूँ मैं रनिंग के कपड़े पहन के सोता हूँ. तो जो रनिंग के कपड़े पहन के सोया, मैं ब्रश किया, निकल गया रन करने के लिए. कितना इजी है मेरे लिए. राइट. जूते रेडी हैं, सॉक्स धुला हुआ है. तो आप ना ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप अगर आप अपने डेली लाइफ में कर लोगे ना, तो जो आपको कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी कभी भी. एंड दैट इज वो जो फर्स्ट टाइम रनर्स का आपने एग्जांपल दिया था, उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा. और जो मेरा रनिंग शर्ट है, दिस इज अ रनिंग टी शर्ट फ्रॉम टाटा स्टील कोलकाता रन. 25 किलोमीटर. It happened in December of 2018. Okay. And it was my first 25 kilometers. Okay. और वो रन दौड़ने से पहले मैंने 21 किलोमीटर भी नहीं दौड़ा था कभी. अच्छा. ठीक है. मैक्सिमम आई रन आई थिंक 16 किलोमीटर्स. हाँ. तो वो भी एक अंडर प्रिपेयर्ड रेस थी, जोश जोश में चला गया. टाटा स्टील ने फ्री में एंट्री दिया था वहां पे. ठीक है. और ये जो शर्ट है 3 घंटा 15 मिनट में मैंने 25 किलोमीटर किया. हाँ. और आज के दिन 6 साल 7 साल बाद मैंने 2 घंटा 18 मिनट में भी 25 किलोमीटर किया है. ओके. मतलब मैंने अपना 6 साल में 1 घंटा टाइम उस इवेंट से घटा दिया है. ओके. तो फॉर मी पर्सनली इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट. राइट. क्योंकि यूजुअली आप देखिए मैराथन्स में या फिर लेट्स से क्या पॉपुलर है वर्ल्ड में, 100 मीटर रेस 9.58 यूसेन बोल्ट का टाइम है. 9.58 को 9.57 करने में 3 साल 4 साल लग जाएंगे, एक सेकंड शेव ऑफ करने के लिए, 0.01 सेकंड शेव ऑफ करने के लिए. फॉर मी एज अ रनर 1 hour इज मोर देन इनफ. एंड इस
इवेंट में आई ड्रैग्ड माई राइट हैंड, राइट थाई और राइट लेग यूजिंग माई हैंड फॉर द लास्ट 2 to 3 kilometers बिकॉज आई वॉज क्रैम्पिंग हैवीली बैडली. मेरे को कुछ पता नहीं था कि पहले मुझे सॉल्ट कैसे लेना चाहिए. अच्छा, सॉल्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर रनर्स टू अवॉइड क्रैम्प्स. तो वो कैसे लेना चाहिए, कैसे क्या प्रिपेयरनेस रहनी चाहिए, कितना ट्रेनिंग लोड होना चाहिए, कितना माइलेज होना चाहिए, वो सारी चीजें मुझे नहीं पता थी उस समय में. फिर मैंने रेस कंप्लीट की. यस. तो मैंने टचवुड मैंने आज तक कभी भी डीएनएफ नहीं किया है. तो डीएनएफ इज अ थिंग, डिड नॉट फिनिश. डीएनएफ का मतलब होता है, तो आप अगर रेस नहीं कर पाते तो यू कैन, कोई भी वॉलंटियर के पास में आप जाके बोलो कि मुझे एम्बुलेंस में बुला लो और फिर ले जाओ. तो वो आपका ऐसे बिप फाड़ देंगे एंड देन उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे कि आपने फिनिश नहीं किया रेस. ऐसा. तो मेरा आज तक कोई भी रेस ऐसा नहीं है जिसको मैंने स्टार्ट किया और डीएनएफ किया है. मैंने हर रेस मैंने फिनिश किया है. कोई ऐसी लंबी इंजरी नहीं रही है, कोई सर्जरी वगैरह कुछ नहीं हुआ है. एंड मे बी ये भी रीजन हो सकता है कि मैंने मे बी इस स्पोर्ट को ज्यादा सीरियसली ना लिया हो. ये स्पोर्ट मेरे लिए एक मोर और लेस एक मीन्स ऑफ कनेक्टिंग टू द कम्युनिटी है. आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अभी कुछ दिनों पहले अहमदाबाद में था, ऑफिस के तरफ से गया था मैं. तो मैंने वो अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट में मैंने पूरे 11 किलोमीटर दौड़ा सुबह सुबह उठ के 5:30 बजे. तो रनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच हैज अलाउड मी टू एक्सप्लोर द प्लेस. मैं दोस्त की शादी में गया था बैंगलोर में. शादी में गया हूँ दोस्तों के साथ गया हूँ. पार्टी का मूड है, शाम को पूरा पार्टी वार्टी किया हम लोग. अगले दिन सुबह में चला गया दौड़ने के लिए, सब सो रहे हैं. ये मैं बैंगलोर घूम लिया ऐसे. ठीक है. आगरा गया था, मैं आगरा में भी दौड़ रहा हूँ. तो मैं जहां पे भी जाता हूँ मैं एक सेट जूते, कपड़े, शॉर्ट्स सब रेडी लेकर के जाता हूँ और मैं वहां दौड़ता हूँ ताकि मैं उस जगह को एक्सप्लोर कर सकूं. क्योंकि ऑन फुट जो आप देखते हैं, जो एक्सप्लोर कर, उसका फील ही अलग होता है. करेक्ट. सो आई विल, आप मुझसे आज पूछ रहे हैं, आज 2025 है, जब मैं भी लेक्ट से 2050 के बाद भी आप पूछेंगे ना कि वो साबरमती के सामने तुमको दौड़ने का क्या फील था, मैं वो आपको उस मोमेंट में मैं रिकलेक्ट कर पाऊंगा बिकॉज इट हैज बिकम अ कोर मेमोरी फॉर मी. ठीक है. एंड दैट्स हाउ मतलब पीपल गेट थ्रू इट. एंड अगेन दिस शर्ट इज वेरी क्लोजर टू मी बिकॉज वो बहुत अच्छा फिट आता है मुझे. ये मेरे मोटे वाले स्टेज का शर्ट है ये. एंड अगेन इट हैज अ लॉट ऑफ मेमोरीज. एंड आफ्टर दैट आई हैव नॉट क्रैम्प्ड मोस्टली इन एनी इवेंट. एंड आई एम वेरी माइंडफुल कि मैं ऐसा ना हो, अंडर प्रिपेयर्ड ना जाऊं. एंड अगेन मेरे पास बहुत सारे शर्ट्स हैं दोस्तों को देने के लिए, पेरेंट्स को देने के लिए, एंड देन अपने फैमिली मेंबर्स को देने के लिए. तो उनको भी कभी कभार आता है, आपके घर में कौन दौड़ता है. तो रनर्स को शो ऑफ बहुत पसंद है. मुझे बहुत शो ऑफ पसंद है. आज मैंने रन किया है तो मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट करूंगा, स्टेटस डालूंगा, फिर लोग उससे भी इंस्पायर होते हैं, मैसेज करते हैं, भाई तू रोज कैसे रन कर लेता है. सही बात है ना. तो वो एक चीज है कि वो मैं अपने लिए कर रहा हूं, दैट इज इनफ. वो मुझे लाइक्स चाहिए, मुझे जो भी कमेंट्स चाहिए, दैट इज समवेयर और द अदर थिंग. बट वो है कि एक मान लो अगर मैंने 4 दिन पोस्ट नहीं किया ना, तो सामने से कुछ कोई फ्रेंड का मैसेज आ जाता है, भाई क्या हुआ, तेरा रनिंग पोस्ट नहीं आ रहा है. तो ऐसे भी तरीकों से आप मोटिवेटेड रह सकते हैं और दूसरों को भी आप ला सकते हैं रनिंग में. तो आई हैव फ्रेंड्स हु हैव सीक्ड हेल्प फ्रॉम मी इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग फॉर शूज. जैसे आपने शूज के बारे में पूछा, क्या रूटीन रहना चाहिए उसके बारे में पूछा. तो ऑल दोस थिंग्स आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ. और मैं 2 क्लब्स का नाम लेना चाहूंगा जो मेरे पास बहुत ही हेल्पफुल किए हैं मुझे. वन इज जमशेदपुर रनर्स, जहां से मैंने स्टार्ट किया. जमशेदपुर इज द प्लेस जहां पे टाटा स्टील है, जो मेरे कॉलेज के बाद पहली पोस्टिंग थी. वहां पे मैंने 4 साल निकाले. और वहां पे बहुत ही सुंदर एक जमशेदपुर जेआरडी स्टेडियम है जहां पे मैं रन करता था, बहुत ही सुंदर. एंड अंबरनाथ रनिंग फाउंडेशन ARF, जो मतलब एक धृति चौधरी मैम है, वो चलाती हैं. उनके साथ में जुड़कर बहुत सारे रनिंग इवेंट्स वगैरह में हम लोग जाते हैं, रनिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. बदलापुर रनिंग फाउंडेशन जस्ट उसके आगे है. तो ऐसे पूरे मुंबई में ना हर एक छोटे छोटे सर्कल में एक एक रनिंग ग्रुप्स हैं. तो इंडिया में आप देखेंगे मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, ये रनिंग के हॉटस्पॉट्स है. यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रनिंग ग्रुप है. और अब ऐसा लग रहा है कि ये मेट्रो सिटीज तक सिर्फ सीमित नहीं है, चिपलुन जैसे शहर में भी रनिंग ग्रुप है. तो ऐसे रनिंग ग्रुप्स के साथ जुड़कर आप अपने रनिंग के जो भी स्टार्ट है, लेट्स से आपको अगर लगता है कि आपको स्टार्ट करने के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप उनके साथ जुड़े, इनसे स्टार्ट कर सकते हैं. एंड दिस विल हेल्प यू कम इनटू द रनिंग सीन and stay fit. Stay fit, yes. है ना, most of all. Awesome, यार, amazing. It was so amazing talking to you. So amazing to know about running. कि running में, you know, it's not just
शूज पहने दौड़ लिया, बहुत कुछ चीजें होती है यार, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है एंड प्रेप होता है, प्री रन ये लेना होता है, एंड अपना करंट इंडिया का रनिंग सीन क्या है, एथलेटिक्स का सीन क्या है. सो बहुत मजा आया एंड आई थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस अबाउट रनिंग. थैंक यू. एंड आई होप कि जो कोई भी ये देख रहा है, जो कोई भी रनिंग में इंटरेस्टेड है, जो कोई ये सोच रहा है कि यार जैसे जैवलिन थ्रो लोगों को पता नहीं था, लेकिन अभी लोगों को पता है कि ओके ठीक है, नीरज चोपड़ा है, उसने एकदम नेक्स्ट लेवल पे लाके रख दिया इंडिया को. वैसे रनिंग में अभी भी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि वेरी होपफुल. हाँ, क्योंकि इंडिया अभी तक इंटरनेशनल स्टेज पे पहुंचा नहीं है. तो आई होप ये देख के कोई ना कोई एक बंदा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और हमको वर्ल्ड मैप पे लाके रख दे. बिल्कुल, बिकॉज वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडिया में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है. साई है, बहुत सारे प्राइवेट मतलब कंपनीज है. फॉर एग्जांपल जिंदल हो गए, टाटा हो गए, इनके पास काफी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जिन लोगों को ग्रास रूट लेवल से डेवलप करना होगा. जैसे अब सोचिए, चाइना में व्हाई डज चाइना मेडल्स एवरी टाइम इन द ओलंपिक्स? बिकॉज वहां ग्रास रूट लेवल से बच्चे तैयार हो रहे हैं आर्चरी के लिए, रनिंग के लिए, स्केटिंग के लिए, किसी भी चीज, कोई भी ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए. सो we have grassroots level programs running by corporations, running by India. Just we need to shine in some years, but I think running's time will come. कोई तो इंस्पायर होके ये सोच ले कि भाई रनिंग में फोड़ देंगे, right? So thank you Shivam, thank you so much for coming and talking to us about running. Thank you for having me.